students. In previous 3 videos, we discussed about the semiconductor devices which are the good to control the flow of the electron. Okay, so that's why we are focusing on the semiconductor materials and uske classifications हमने देखे थे, and the classifications which is based on the resistivity and conductivity. All right, and then after also we discuss about the Venn diagram of the different types of the metal, semiconductor and insulator. ओके चलो, सो अभी पता चलेगा कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है विच आर द यूज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन वी हैव टू गो विद द व्हाट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, राइट. सो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो होते हैं हमारे एलिमेंट्री जो कंसीडरेशंस करते हैं वो कौन कौन से कंसीडरेशंस करते हैं हम. फॉर दिस चैप्टर वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी ओनली हैव टू डिस्कस अबाउट द intrinsic semiconductor or we may say as a pure semiconductor material. क्या intrinsic semiconductor material or we can say as a pure semiconductor materials and we have silicon and germanium. चलो, तो सिलिकॉन के बारे में जो हम डिस्कस करें, for the silicon atomic number of the silicon Z is equal to as we know that 14. ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशंस हम कंसीडरेशंस करें, so it's electronics configurations which is 1s2 then 2s2 2p6, okay, and 3s2 and 3p2. All right, so this is the electronics configurations for what, for the silicon. So हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 14. सो 2 plus 2 that means 4 plus 6 कितने होते हैं 10 plus 4 कितने होते हैं 14, राइट. सो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट वन which are completely filled, this is also completely filled, but ये जो वाली है this one which is not completely filled, क्या हम बोल सकते हैं incomplete. ठीक है, and these both are the completely filled और उसका नाम हम considerations करते हैं, ये K है, this is our L and this is our M. ठीक है, so these both are the completely filled but this is not completely filled. Alright, चलो, again we have to understand using this figure. So for the first orbit which is having two numbers of the electrons and we can say the n is equal to 1 cell. ठीक है, n is equal to 1 cell, उसमें कितने होते हैं for the k1, k हम बोल सकते हैं n is equal to 1, k नाम देते हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. then second one n is equal to 2, we can say the l. ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 numbers of the electrons. okay, so first, second, third, fourth, 5, 6, 7 and 8. Alright, चलो, then after बात आएगी लास्ट वन, उसमें कितने KL and M. ओके, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 1, 2, 3 and 4. ठीक है, so this is the configurations for what, for the silicon and we have to focus on what 14 numbers of the electron तो होने ही चाहिए. so total calculate कर the 2 plus 6 2 plus 8 10 then 11 12 13 and 14, that means total configuration इसकी अभी complete हो जाएगी. and ये last orbit and as we discussed in the previous video, last orbit में जो electrons होते हैं which is considered as a what, valence electron. so for silicon 4 valence electron. ठीक है, so similarly for the germanium and germanium का नंबर क्या होता है, germanium का एटॉमिक नंबर होता है germanium Z is equal to 32. क्या germanium का एटॉमिक नंबर क्या है, Z is equal to 32. so उसमें K, L, M and N आता है. so ये तीनों जो है ना वो completely filled है and ये जो है ना which is incomplete. ठीक है, so for that which is also having 4 जर्मेनियम की बात करें तो which is also having 4 valence electrons. Okay, so same क्या हुआ, silicon having 4 valence electron as well as germanium having 4 valence electron. that means इधर हम लिख सकते हैं कि silicon and germanium having 4 valence electrons. All right,
So now we have to discuss about its structure. ठीक है, चलो so इधर देख लेते हैं. In its crystalline structure, every silicon or a germanium share one of its four valence electron with its nearest neighboring atoms. ठीक है, so इसका अभी हम structure draw करते हैं. As we know that how many numbers of the valence electrons? 4. ठीक है, सिलिकॉन होगा और जर्मेनियम होगा, both having the valence electron. So इधर हम क्या लिख सकते हैं? 4. देन उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए ऐसे हम कंसीडरेशंस करते हैं 4 4, राइट. राइट, चलो वैलेंस में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 4. सो 1 2 3 एंड 4. सिमिलरली ओवर हियर 1 2 3 एंड 4. 1 2 3 4, राइट. 1 2 3 4. 1 2 3 4. ये हो गया. चलो नाउ एज वी डिस्कस ओवर हियर, क्या बताया गया? इन इट्स अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एवरी सिलिकॉन और अ जर्मेनियम. ठीक है, इधर हम मेंशंस कर देते हैं पहले से ही +4. दैट मींस सिलिकॉन भी हो सकता है और जर्मेनियम भी हो सकता है, व्हिच इज हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो एवरी सिलिकॉन और जर्मेनियम शेयर वन ऑफ इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ इट्स नियरेस्ट नेबर एटम्स. ठीक है, सो फॉर दिस वन, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके नियरेस्ट वाला कौन सा है? दिस वन एटम्स. तो उसके साथ क्या बॉन्ड बनेगा? ये ऐसा कुछ बॉन्ड बनेगा. दैट बॉन्ड व्हिच इज नोन एज अ कोवैलेंट बॉन्ड. क्या? ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों साथ में बनके जो एक बॉन्ड बनाते हैं, एंड दैट बॉन्ड व्हिच इज नोन एज अ व्हाट? कोवैलेंट बॉन्ड. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. ऑलराइट, सिमिलरली ओवर हियर ऑल्सो हर एक जगह पे क्या बनाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, उसके नियरर वन जो होगा उसके साथ क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, राइट. यहाँ पे भी, राइट. राइट, चलो सो जो भी दिख रहा है यहाँ पे, दिस वन ऑल्सो कोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो कोवैलेंट बॉन्ड. ऑलराइट, एंड कोवैलेंट बॉन्ड व्हिच इज ऑल्सो नोन एज अ व्हाट? व्हिच इज ऑल्सो नोन एज अ वैलेंस बॉन्ड भी हम उसको बोल सकते हैं. ठीक है, एंड दिस इज द फिगर फॉर व्हाट? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ किसका रिप्रेजेंटेशन? क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम स्ट्रक्चर. ओके, चलो सो नाउ at absolute zero temperature, each valence electron of semiconductor is bound by covalent bond. क्या absolute zero temperature होगा तब क्या हो जाएगा? तब हमारे जो covalent bond है वो as it is ही रहेगा. and as it is रहेंगे तो वहां पे conductions में यानी कि flow of the electron नहीं हो रहा होगा. that means which is act as a what? which is act as a insulator, right? so it is behaves as a insulator. but at the room temperature, the atoms of the crystal which are perform the thermal oscillations. क्या बताया हुआ है? at the room temperature, यानी कि हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है? 27 डिग्री जो होता है अप्रोक्सीमेट. तब क्या होता है? हमारा जो बॉन्ड होता है वहां पे क्या होता है? थर्मल ऑसिलेशंस होता है. एंड बिकॉज ऑफ द थर्मल ऑसिलेशंस दैट विल बी रिजल्ट इनटू द ब्रेकिंग ऑफ सम कोवैलेंट बॉन्ड. क्या होगा? at the room temperature the thermal oscillations होगा, thermal oscillations होगा. because of that reasons वहां पे क्या हो जाएगा? some several covalent bonds क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो गए, right? so ब्रेक हो गए and that will be result in what? that will be result on the electrons which are the free from the covalent bond. ठीक है, क्या हो जाएगा इधर in this one? पहले की कंडीशंस में क्या था? at the absolute zero temperature पे हमारे क्या नॉर्मल कंडीशंस हम बोल सकते हैं. तब एज इट इज ही रहेगा एंड तब क्या फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन नहीं होगा एंड विच इज कंसिडर्ड एज अ व्हाट? विच इज एक्ट एज अ व्हाट? इंसुलेटर की तरह के वर्क करेगा. बट एट द समथिंग रूम टेम्परेचर द एटम्स ऑफ द क्रिस्टल विच इज परफॉर्म एज अ थर्मल ऑसिलेशंस एंड ड्यू टू द थर्मल ऑसिलेशंस विच इज हैविंग व्हाट? ब्रेकिंग ऑफ सेवरल कोवैलेंट बॉन्ड. अब वी कैन से सम कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा एंड वो ब्रेक होगा. बिकॉज ऑफ दैट रीजंस वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा. ठीक है,
and electron free हो जाएगा and that will be results on what, which are the responsible for the electrical conductions and because of that reasons flow of the electron हो जाएगा, conductions हो जाएगा. ठीक है, चलो. सो उसको ही अभी इधर हम फिगर के कॉन्फ़िगरेशंस के हम समझे कि ये जो हमने एक्सप्लेनेशंस किया, using that one we have to understand this one. चलो. So as we know that silicon or a germanium having the 4 valence electron, तो ये फिगर हमने आगे कैसे ड्रॉ किए उसके बेसिस पे पहले एज इट इज ड्रॉ कर दी है. नाउ इन दिस फिगर वी हैव टू कंसीडर साइट 1 एज वेल एज साइट 2. ये पोर्शंस को हमने कंसीडरेशन किया हुआ है साइट 1 एंड दिस वन कंसीडर एज अ साइट 2. ठीक है. सो अभी हो क्या रहा है इधर कि बिकॉज ऑफ द थर्मल ऑसिलेशंस ये जो हम कंसीडरेशंस करते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है. क्या कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, टेम्परेचर वी कैन से थोड़ा इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट रीजंस ये कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है. एंड ब्रेक हो रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन ये यानी कि ये इसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन छूट के बाहर निकल जाता है. ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मूवमेंट हो जाता है एंड इधर वी आर शोइंग ओवर हियर द थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन कहां से निकल आया, इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में ब्रेक हुआ, बिकॉज ऑफ दैट रीजंस वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव. सो वो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन इधर हमें शोन किया हुआ है एंड वहां पे खाली जगह रही, क्या इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह गई एंड व्हिच इज नोन एज व्हाट, ये खाली जगह इधर शोन किया हुआ है व्हिच इज कंसीडर्ड एज व्हाट, होल. उसके क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, राइट. सो व्हिच इज नोन एज अ होल एंड वी कैन से किसकी जगह खाली रह गई, किसकी जगह खाली रह गई, इलेक्ट्रॉन. अभी रिक्वायर्ड क्या रहेगा ये होल को, इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी रहेगी इसको. ठीक है. सो वी कैन से इलेक्ट्रॉन वैकेंसी. नाउ ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन है विच आर द नेगेटिव एंड होल को हम क्या बोल सकते हैं, विच आर दी पॉजिटिवली चार्ज हम बोल सकते हैं. सो विच इज हैविंग एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रहेगी होल की, किसकी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा बिकॉज दिस इज अवर होल. इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इधर दूसरी जगह पे क्या जाएगा, अभी एक्सेप्ट करेगा. वो किसको एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. क्यों, क्योंकि इधर अभी होल है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. दैट्स मींस इधर प्लस होगा तो ही तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. सो दैट्स व्हाई व्हिच इज कंसीडर्ड एज अ व्हाट, पॉजिटिव वन. दैट मींस इधर जो होल होता है व्हिच इज एक्ट एज अ पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन होता है एज वी नो दैट वो तो क्या है, नेगेटिव, राइट. चलो. सो ये फिगर का कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया. सो हम क्या बता सकते हैं, फॉर द प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, for the intrinsic semiconductor material we can say numbers of the free electrons equal to the, क्या जितने numbers of electron होंगे उतने numbers of the hole generate होगा. for what, for the pure semiconductor materials. that means इतना इधर एक hole generate हुआ तो electron भी कितने होंगे, एक ही होगा. that means what we can say, numbers of the electron is equal to numbers of the hole which is equal to ni. that means what, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल हम बोल सकते हैं, उसका कंसंट्रेशन हम बोल सकते हैं. ठीक है. सो ये जो इक्वेशन से बहुत सारी एग्जाम में आ चुका है, क्या, फॉर द प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल और वी कैन से एज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के नंबर्स ऑफ द होल इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ऑलराइट. सो ये एमसीक्यू में आ चुका है, वी हैव टू कीप इन माइंड. ठीक है. चलो. नाउ अभी मूवमेंट ऑफ द होल. चलो ये फिगर को पहले देख लो शांति से. पहले क्या इधर होल था, अभी होल है तो वो एज इट इज नहीं रहेगा. एज वी डिस्कस ओवर देयर इज सेवरल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बहुत सारे बॉन्ड. ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, दूसरी जगह पे भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है. सो बॉन्ड वो ब्रेक होता है बिकॉज ऑफ दैट रीजंस ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे खाली जगह है, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ. सपोज ऐसा अज्यूम कर लेते कि इधर से ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यानी कि इधर खाली जगह रह गई, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सपोज इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर आ गया. दैट मींस वो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा एंड एज वेल एज द मूवमेंट ऑफ द होल भी होगा. चलो. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम इधर से सिंपल फॉर्म में समझे तो क्या, फिगर तो एज इट इज ही है. साइड 1 साइड 2 हमें फोकस करना है. ठीक है. अभी इधर होल है तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि ये पोर्शन है साइड 2 मेंशन किया हुआ है, वहां से क्या हो जाएगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. ओके. ड्यू टू द थर्मल ऑसिलेशंस क्या हो रहा है, साइड नंबर 2 में ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है. ब्रेक हो रहा है तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री होगा. ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली उसके नजदीक वाला जो होल है उसमें फिलअप हो जाएगा. दैट मींस यहाँ पे पहले खाली जगह जनरेट हुई थी ड्यू टू द थर्मल ऑसिलेशंस, अभी उसके नजदीक में होल है
तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे फिल कर देगा। दैट मीन्स व्हाट, होल का मूवमेंट होगा। पहले होल इधर था, अभी नेक्स्ट फिगर में होल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। एंड दैट्स हाउ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी होगा एज वेल एज मूवमेंट ऑफ द होल भी होगा। एंड टोटल करंट ऑन द इन दिस सेमीकंडक्टर, व्हाट वी कैन से फॉर द प्योर total current I is equal to IE plus IH. IE that means what? Electron current plus hole current. ठीक है, so this is all about the this one. Okay, and obviously figure का नाम क्या जाएगा, movement of the hole 1. पहले कहाँ पे था, साइड 1 यानी कि 1 साइड 2, which one साइड 2, यहाँ पे मूवमेंट हो गया होल का। ओके, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। चलो, then after we already discuss about the band diagram in previous video. सो इसमें से भी हम सिंप्लीफिकेशन समझ सकते हैं कि ऊपर वाला जो बैंड होता है विच इज कंसिडर्ड एज अ व्हाट, कंडक्शन बैंड। डाउनवर्ड में जो होता है विच इज कंसिडर्ड एज अ व्हाट, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में आउटर में कितने 4 नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो हम इधर समझ लेते हैं, दिस वन 1 2 3 एंड दीज आर कंप्लीटली फिल्ड। दिस इज कंसिडर्ड व्हाट, ईवी, दैट मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड एज वी नो दैट बिकॉज ऑफ द थर्मल ऑसिलेशंस कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो हम ऐसा एज्यूम कर ले कुछ ना कुछ एनर्जी मिल जाएगी। सो एनर्जी मिल जाएगी तब क्या हो जाएगा, ये पोर्शन आ जाएगा क्या, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका मूवमेंट होके कहाँ पे चले जाएगा, यूजिंग द कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ऑलराइट, और वी कैन से एट T is equal to 0 Kelvin टेम्परेचर इट इज एक्ट एज अ इंसुलेटर। यहाँ पे जो बात की है वही है कि नॉर्मल कंडीशंस में विच इज एक्ट एज अ इंसुलेटर। क्यों, क्योंकि कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट T which is greater than this 0, तब क्या हो रहा है, तब हमारे जो इलेक्ट्रॉन है कुछ ना कुछ एनर्जी मिली। ओके, थर्मल ऑसिलेशंस होगा, बिकॉज ऑफ दैट रीजंस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वहां पे ये क्या जनरेट हो गया, हमारा होल। एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था उसका मूवमेंट कहाँ पे आ गया, इनटू द कंडक्शन बैंड। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजंस कंडक्शंस होगा सेमीकंडक्टर मटेरियल में।